welcome back to my channel. So for today our topic of discussion will be the cyanobacteria and the mycoplasma. So as you know, in my previous video we have discussed about all the reproduction types and their modifications and the organisms involved. So if you haven't watched that video, then please go to the link provided in the description and check it out. Also, if you like my videos, then please don't forget to press subscribe button. And so without doing further delay, let's get started. So first thing is cyanobacteria. तो cyanobacteria में सबसे पहले जो names associated हैं, that you have to know. Apart from cyanobacteria, this is also known as blue-green algae or Myxophyceae or Cyanophyceae. So these are some names other than cyanobacteria which are associated from this organism. And this organism is basically most of the forms are freshwater, but few are marine also, right? So the name suggests cyanobacteria, but we also call it as blue-green algae. So why? Is it a bacteria or an algae? तो ये confusion हम clear करेंगे थोड़े time बाद. But इतना तो हमें पता है कि for sure it is a bacteria. Then why it is known as blue-green algae? तो वो हम पढ़ेंगे आगे. उससे पहले cyanobacterial, most of the forms are freshwater forms, and some of the forms are, few forms are marine or marine, right? So one of the important or the significant organism is Trichodesmium erythraeum. So this organism is basically, due to its abundant growth in a sea, the sea is named as Red Sea. तो Red Sea जो है उसके लिए responsible जो organism है, that is Trichodesmium erythraeum, which is a cyanobacteria. So due to this abundant growth of this organism, the whole surface of the sea appears to be red. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? Red Sea. So first of all you need to be clear with the terms. Red Sea बोल रहे हैं या Red Tides बोल रहे हैं? अगर Red Sea बोल रहे हैं, then you have to write this Trichodesmium erythraeum. एंड हम आगे प्रोटिस्टा जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि वहां पे रेड टाइड्स भी आएगा. तो इफ इन द क्वेश्चन रेड टाइड्स आर रिटन is written, then you have to go for the protestant part which is goniolax, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है कि रेड सी दिया हुआ है या रेड टाइड दिया है. ठीक है, तो यहाँ पर अभी रेड सी है. सो द ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विल बी Trichodesmium erythraeum, which is a marine form of a cyanobacteria. ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया on the basis of their habitat. They can be unicellular, right? They can be filamentous, and they can be colonial. Each of the term has its own separate meaning. यूनिसेल्युलर का मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें याद रखना है वी हैव यूनिसेल्युलर साइनोबैक्टीरिया आल्सो. फॉर एग्जांपल स्पिरुलिना. तो जो स्पिरुलिना है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्युलर साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, फिलामेंटस का मतलब क्या होता है कि फिलामेंट्स बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ है. सो ये फिलामेंटस फॉर्म में अराउंड 4 to 10 सेल्यूलर स्ट्रैंड्स होते हैं. सेल्यूलर स्ट्रैंड्स और सेल्यूलर यूनिट्स हैं विच इज इंडिविजुअली नोन एज ट्राइकोम्स. तो मतलब क्या है कि एक फॉर्म और एक जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स. ठीक है, और उन यूनिट्स को हम क्या बोल देते हैं? 4 to 10 सेल्यूलर स्ट्रैंड्स, एंड दोस सेल्यूलर स्ट्रैंड्स आर नोन एज ट्राइकोम्स. ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम बाय सीइंग अ स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें यहां पर, तो होगा क्या? दिस इज तो स्पिरुलिना, राइट? तो ये तो ठीक है.
अभी हमने बोला 4 to 10 सेल्यूलर स्ट्रैंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स, है ना। अब इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होता है तो थोड़ा सा देखो। अगर मान लो दिस इज माय द सेल्यूलर स्ट्रैंड्स विच इज अराउंड 4 to 10 इन नंबर, ठीक है। तो मान लो ये मेरा वन ऑफ द साइनोबैक्टीरियल बॉडी है, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्यूलर स्ट्रैंड्स, ठीक है। सो अब इन स्ट्रैंड्स में कुछ कुछ जगहों पे मतलब बीच बीच में अ यूनिक काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज बियरिंग सेल कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। तो होता क्या है, दिस ट्राइकोम्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। दे कैन बी होमोसिस्टस और दे कैन बी हेटेरोसिस्टस, ठीक है। होमोसिस्टस का मतलब है दैट दे आर नॉट बियरिंग एन हेटेरोसिस्ट, वेयरएज हेटेरोसिस्टस का मतलब है कि एक हेटेरोसिस्ट 1 or 2 हेटेरोसिस्ट आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हेटेरोसिस्ट क्या होता है, हेटेरोसिस्ट इज नथिंग बट जस्ट द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इन साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया के अंदर हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होगा विच इज नथिंग बट जस्ट द साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड दूसरे साइनोबैक्टीरियाज में वो प्रेजेंट नहीं होगा जिसको हम बोल देते हैं होमोसिस्टस। तो जिनमें हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है दे आर हेटेरोसिस्टस, जिनमें हेटेरोसिस्ट नहीं प्रेजेंट है दे आर होमोसिस्टस। तो इससे एक और चीज क्लियर हुई कि हेटेरोसिस्टस फॉर्म्स आर ओनली केपेबल ऑफ डूइंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, whereas homocystis forms are not able to fix nitrogen. तो नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन से होंगे, हेटेरोसिस्टस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम याद करते हैं, होमोसिस्टस का एग्जाम्पल होता है ऑसिलेटोरिया विच इज अ होमोसिस्टस फॉर्म, whereas हेटेरोसिस्टस का एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं एनाबेना एंड नॉस्टॉक, राइट। तो हमने पढ़ा कि हमारे पास जो सिम्बायोटिक फॉर्म है उसमें 4 to 10 सेल्यूलर स्ट्रैंड्स होते हैं जिसको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। नाउ दीज फिलामेंटस फॉर्म्स कैन बी हेटेरोसिस्टस और होमोसिस्टस। हेटेरोसिस्टस मींस दे आर बियरिंग अ साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉर एग्जांपल दिस इज द हेटेरोसिस्ट, ठीक है। So if they are bearing heterocyst, that means the site for nitrogen fixation, that means they are नाइट्रोजन फिक्सर्स, whereas other organisms और other cyanobacterium जो कि हेटेरोसिस्ट बियर नहीं कर रहे हैं, those are known as homocystis, ठीक है। और इनका एग्जाम्पल याद किया, ऑसिलेटोरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोसिस्टिस फॉर्म, whereas एनाबेना एंड नॉस्टॉक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोसिस्टिस फॉर्म, ठीक है। तो ये फिलामेंटस के बारे में आ गया। अदर थिंग इज कॉलोनियल फॉर्म जो है उसका एक एग्जाम्पल याद रखना है, दैट इज नॉस्टॉक। व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियल फॉर्म्स, विच अकर इन कॉलोनीज। वो कभी भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करना, रहना प्रेफर करती हैं, दे एग्जिस्ट इन कॉलोनीज, ठीक है। तो बड़े सारे आपको ऐसे कॉलोनीज लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा नॉस्टॉक के, जिसमें बड़े सारे नॉस्टॉक प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कॉलोनी में। तो दीज आर द कॉलोनियल फॉर्म्स, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड अबाउट कि वो फ्रेश वाटर हो सकते हैं या मरीन हो सकते हैं। देन वी हैव स्टडीड अबाउट दे कैन बी यूनिसेल्युलर, colonial or filamentous forms. Now the third type of classification is on the basis of they can be free living or symbiotic. So what do you mean by free living? Free living means कि they are capable of independent existence, or symbiotic means कि they mutually associate with some other organism to carry out its own function and somehow perform its the other plants function too, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि symbiotic association एक ऐसी एसोसिएशन है जहां पे दोनों ऑर्गेनिजम्स का काम पूरा हो रहा हो, दोनों ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो एक दूसरे से, ठीक है। और फ्री लिविंग है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ वो खुद जी सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। सो फ्री लिविंग फॉर्म
का एग्जाम्पल याद रखना है, ओलोसिरा. दिस इज द फ्री लिविंग फॉर्म विच इज यूजुअली यूज्ड एज अ नाइट्रोजन फिक्सर. कहां पर? यूजुअली इन राइस और पैडी फील्ड्स. ठीक है. जबकि सिम्बायोटिक के एग्जाम्पल्स हम दो पढ़ेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एनाबेना साइकेडे. As the name is saying, Psychedee. So this is present or this is symbiotically associated with the coralloid roots of Cycas plant. ठीक है. तो क्योंकि नाम में ये साइकेडे है, दैट मीन्स साइकस प्लांट, तो इनके कोरलॉइड रूट्स से ये एसोसिएटेड होता है माइक्रोब. ठीक है. देन हमारा दूसरा आता है अजोला अजोले. ठीक है. तो ये जो होता है दैट इज एसोसिएटेड विद द अजोला प्लांट, इसीलिए नाम में अजोला है. ठीक है. सो अजोला इज एन एक्वेटिक फर्न जो कि यूज किया जाता है राइस फील्ड में. तो अजोला इज ऑल्सो अ एक्वेटिक फर्न. और इससे सिम्बायोटिकली एसोसिएट कौन होता है? अजोला अजोले और साइनोबैक्टीरिया. ठीक है. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया. दे कैन बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक. फ्री लिविंग का एक एग्जांपल याद रखना है ओलोसिरा विच इज यूजुअली अ नाइट्रोजन फिक्सर इन राइस फील्ड्स. एंड सिम्बायोटिक का याद रखने हैं दो, एनाबेना साइकेडे विच इज अ साइनोबैक्टीरिया symbiotically associated with the coralloid roots of cycas plants, and Azolla azole which is associated with the Azolla plant which is an aquatic fern. Now the next part is कि these organisms are oxygenic photosynthetic, जो कि एक अलग कैरेक्टरिस्टिक आ गया बाकी प्रोकैरियोट से. ठीक है. बाकी प्रोकैरियोट्स वर अनऑक्सीजेनिक, है ना. अगर कुछ photosynthetic थे भी, so they were unoxygenic, but this was the only one which is oxygenic photosynthetic, which means photosynthesis के time पे it has the capability to use oxygen. ठीक है. so they were oxygenic photosynthetic. they require oxygen. ठीक है. Also they have a pigments. कौन कौन से पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए एंड phycobilins. So they have these two pigments which are present in cyanobacteria. अब ये पिगमेंट्स जो है ना, these are photosynthetic pigments. This is the reason why cyanobacteria is known as blue green algae, because आपके पास क्या है? साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन्स एज वेल एज इट इज फोटोसिंथेटिक. तो क्लोरोफिल ए भी है और फोटोसिंथेटिक भी है, वो भी ऑक्सीजेनिक. दीज प्रोसेसेस एंड दीज फीचर्स मैचेस टू विच ऑर्गेनिज्म? एल्गी. तो इसीलिए इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं. ठीक है. जबकि ये एक साइनोबैक्टीरिया है. ठीक है. और बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि बाकी अपार्ट फ्रॉम दीज टू बाकी सारे फीचर्स इसके बैक्टीरिया की तरह है, बट फोटोसिंथेटिक है और क्लोरोफिल है. सो दीज टू फीचर्स इसको इम्पार्ट करते हैं एल्गल लाइक प्रॉपर्टीज. ठीक है. तो यहां पर हमारे पास जो फाइकोबिलिन्स पिगमेंट्स हैं, दे कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. सो दे कैन बी फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ठीक है, एंड एलोफाइकोसाइनिन. So these three types of phycobilin pigments are present. Phycoerythrin is red in color, phycosainin is blue in color, and allophycosainin is light blue in color. So these are the pigments associated with the cyanobacteria. ठीक है. So talking about the reserve food material of the cyanobacteria, we have these 5 types of reserve food, right?
The first one is Sino-Physian starch, which is not similar to the normal starch that we study. So, normal starch usually gives positive iodine test, but this starch is negative in iodine test. So, this is the first thing that you need to remember. Then the Sino-Physian granules are there, which is nothing but the proteinaceous in nature. Then beta granules are there, which is fat bodies. Then volutin granules are there, which is phosphate granules. And polyhedral bodies are Rubisco-rich bodies. Rubisco, that is meant for carboxygenase and oxygenase activity. So that is present in this polyhedral bodies. ठीक है? One more thing कि इनमें heterocyst present है कुछ में. So जो heterocystis form है, they have an additional component that is heterocyst. और heterocyst क्या है? It is a site of nitrogen fixation. But कौन actually करता है nitrogen fixation? An enzyme known as nitrogenase. ठीक है? So nitrogenase को ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए कि नाइट्रोजनेस का ऑक्सीडेशन ना हो जाए और वो नॉन फंक्शनल ना हो जाए, इसलिए हेट्रोसिस्ट्स में PS2 प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली PS1 इज प्रेजेंट. ठीक है? तो वहां पर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन नहीं होती है, Z स्कीम नहीं होती है. सो अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस तो अभी समझ आ गया होगा. अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो हम जब आगे पढ़ेंगे देन यू विल गेट इट. ठीक है? तो अभी हम लोगों ने क्या बोला कि अगर हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजनेस है तो उसे ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए PS2 नहीं होता है हेट्रोसिस्ट में. बाकी वेजिटेटिव सेल्स में प्रेजेंट होंगे दोनों, बट ओनली इन हेट्रोसिस्ट देयर विल बी नो PS2, ओनली PS1 विल बी प्रेजेंट to avoid oxidation of nitrogenase. So apart from two conventional processes like binary fission and fragmentation, there are two new processes जो कि cyanobacteria में होते हैं present. So वो दो नए processes कौन कौन से हैं? Hormogonia and akinates. Hormogonia is the process जहां पर due to death of cells, filament के कुछ cells dead करने लगे, so the filament separates out to form a fragment और वो separate हो जाता है. ठीक है? rest of the fragments or rest of the body से, and it regenerates to form a new filament. So due to death of the remaining cells, some of the filament or one of the filament got separated and regenerated into a new filament. ठीक है? So this is a form of hormogonial reproduction. Whereas in akinates are nothing but just the thick-walled, non-motile spores which are formed during adverse environmental conditions. ठीक है? So binary fission and fragmentation you know very well. Apart from those two, we have akinates and hormogonial mode of reproduction, which is purely asexual. So in cyanobacteria, we only see asexual method of reproduction. So now we'll be studying about mycoplasma. So talking about the last part of kingdom Monera is mycoplasma, which is the smallest cell till date. ठीक है? तो सबसे पहला point, this is the smallest cell. Then they can live without oxygen. तो ये unoxygenic है. They can live very well without oxygen. ठीक है? Third point is they are also known as PPLOs or MLOs, pleuropneumonia-like organisms or mycoplasma-like organisms. ठीक है? अब ये नाम क्यों दिया वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं. बिकॉज these organisms were discovered by two scientists called Rox and Nocard. कहां से? From the cattle's pleural fluid. उनके pleural fluid से of cattles जो कि सफर कर रही थी from bovine pneumonia. तो they were causing pneumonia in cattles. That's why इनका नाम पड़ा pleuropneumonia like organisms. तो pneumonia तो ठीक है, प्लूरो क्या है?
सो दे लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं है। तो अगर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल का मेन काम क्या है? स्ट्रक्चर देना, शेप देना। सो अगर सेल वॉल नहीं है, सो दे कैन चेंज देयर शेप वेरी ऑफन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्लियोमॉर्फिक, मीन्स दे कैन, देयर शेप इज वेरिएबल, they can change their shape, ठीक है? And that's why due to this pleomorphic nature they are also known as joker of plant kingdom, ठीक है? So these 5 points needs to be remembered. स्मॉलेस्ट सेल है, विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं, पीपीएलओज और एमएलओज बोला जाता है। एंड डिस्कवर किया 2 साइंटिस्ट ने, रॉक्स एंड नोकार्ड ने, बाय प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल्स हु वर सफरिंग फ्रॉम बोवाइन निमोनिया। That's why they are known as pleuropneumonia-like organisms. They lack cell wall. That's why they are pleomorphic. They can change their shape very often, and that's why they are also known as joker of plant kingdom. So, going into the structure of mycoplasma, we can see ये जो outermost wall layer दिख रही है, this is nothing but just the plasma membrane, क्योंकि cell wall तो इनमें है नहीं. So फिर क्या बचता है? अंदर plasma membrane. Also, this plasma membrane lacks sterol, just like cyanobacteria. Then we have some RNA molecules in blue color, and we have a DNA too. ठीक है? Also, we have these small dots like structure are ribosomes. तो ribosomes कैसे होते हैं? 70S टाइप के. Now the 2 main things जो कि आपको याद रखना है, they are first is replication disc. ये DNA के एंड में और replication disc is present, जिसका काम होता है जो नाम में लिखा है, replication. ठीक है? And the second thing is these black thing, that is elementary particle. तो ये elementary particle जो होता है, they help in बाइनरी फिजन और डिविजन. तो ये 2 पॉइंट्स बहुत याद रखने हैं, रेप्लिकेशन डिस्क एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स. ठीक है? सो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है इसका. उसके अलावा इसका डीएनए किस तरह का होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, नेकेड होता है. व्हाट डू यू मीन बाय नेकेड? नो हिस्टोन प्रोटीन्स. लीनियर होता है, देख रहे हो. स्पाइरली कॉइल्ड है, मतलब पूरी तरीके से लीनियर का मतलब ऐसे तो है, बट इट इज कॉइल्ड. ठीक है? एंड एसेंशियल एज वेल एज क्रोमोसोमल, नॉट लाइक प्लाज्मिड विच इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. ठीक है ना? तो ये एसेंशियल भी है एंड क्रोमोसोमल भी है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डीएनए. नाउ द लास्ट पार्ट इन माइकोप्लाज्मा आर द डिजीजेस. तो डिजीजेस, इसमें 4 टाइप की डिजीज पढ़ते हो. सबसे पहले ही इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया, विच इज बोवाइन निमोनिया. किसमें होती है ये? इन कैटल्स. तो कैटल्स में तो बोवाइन निमोनिया हो गया. उसके बाद ब्रिंजल प्लांट में डिजीज होती है नोन एज लिटिल डेफ डिजीज. ठीक है? देन हमारी ह्यूमंस में होती है इन यूरिथ्रा नोन एज माइकोप्लाज्मल यूरिथराइटिस. ठीक है? सो इट इज अ यूरिथ्रा में जो इन्फेक्शन हो जाता है बाय माइकोप्लाज्मा, दैट इज नोन एज माइकोप्लाज्मल यूरिथराइटिस. एंड द लास्ट वन इज इन पोटैटो प्लांट विच इज नोन एज विच ब्रूम diseases. So these are the 4 diseases. If you can understand, I have made it little mess here. So there are 4 kinds of disease or 4 diseases, which is bovine pneumonia in cattle, brinjal में little deaf disease, humans में mycoplasmal urethritis, potato में the witch broom disease. So this completes our kingdom Monera finally. So in the next lecture, we will be talking about some of the questions of this kingdom Monera, and we'll be starting with